So, Good morning, everyone. We had learned how we treat in accounting when a company issues shares, when it forfeits shares, when it reissues shares. Now we will discuss debentures. Can you tell me what are debentures? Sir, they are issued for long term to meet the long term requirements. Yes. शेयर्स भी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए ही होते हैं, तो फिर शेयर्स और डिबेंचर्स में मेन डिफरेंस क्या है? डिबेंचर लायबिलिटी होती है और शेयर Yes, very good. When company wants to raise funds in the form of ownership funds, when it wants people to invest money in the company as owners, co-owners, then it issues shares. But when the company wants to borrow money, means it wants general public to invest money in the company as lenders, then it issues debentures. Is it clear? Yes, sir. So, yes, sir. Yes, sir. जब कंपनी को जनरल पब्लिक से लोन लेना होता है तब वो डिबेंचर्स इशू करती है. तो डिबेंचर्स के केस में लोन है क्योंकि बोरोड फंड्स हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी. वन, द कंपनी विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट बोरोड एट अ फिक्स्ड रेट which is specified at the time of issue of debentures itself at regular intervals. Second is, after a fixed period of time, the company will have to repay the principal amount also. Clear? yes sir. Yes, sir. So Yes, suppose the company requires 1 crore rupees and it decides to borrow this amount from general public. It, let us say, divides this amount into debentures of 100 rupees each. So how many debentures will be issued? 1 crore rupees company को चाहिए. 1 lakh. Yes, very good. 1 lakh debentures of rupees 100 each it will issue. ठीक है. और वो सारे let us say लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए और सारे अलॉट हो गए 1 लाख, तो 1 करोड़ रुपीस कंपनी के पास बोरोड फंड्स आ जाएंगे which will be called debentures. Clear? Yes sir. yes, sir. Yes, sir. As per section 2 within brackets 30 of which act? Indian Companies Act of 2013. Companies Act आगे year 2013. very 13. good 2013. ठीक है. So as per this section, debenture includes debenture stock, bonds, and any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. मतलब borrowed funds हैं तो कंपनी के लिए ये डेट हो गई, लायबिलिटी हो गई. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स और नॉट मतलब हो सकता है कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स या सारे एसेट्स एज सिक्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर किए हों, तो हम कहेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स. और अगर कंपनी ने कोई भी एसेट एज सिक्योरिटी ऑफर नहीं किया हुआ डिबेंचर होल्डर्स को, तो हम कहेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं यानी कुछ एसेट्स या सारे एसेट्स कंपनी ने सिक्योरिटी की फॉर्म में ऑफर किए हुए हैं कि भाई अगर हम पे नहीं कर पाए तो आप इन एसेट्स को टेक ओवर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ चार्ज. ऑफरिंग एसेट्स एज अ सिक्योरिटी इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ चार्ज. क्लियर? Yes, sir. Now, main characteristics or features of debentures or bonds. First, it is a written document or a certificate acknowledging a debt through which the company acknowledges that yes, we have borrowed this much amount from you, which we will repay
on this specified date. Mode and period of payment of interest at specified rate and repayment of principal amount is fixed. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Rate of interest is prefixed before the debentures. ठीक है, सपोज कंपनी 9% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑफर कर रही है डिबेंचर्स पे, तो डिबेंचर्स का नाम होगा 9% डिबेंचर्स। अगर कंपनी 8% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट कह रही है कि देंगे डिबेंचर्स पे, तो डिबेंचर्स का नाम क्या होगा? 8% डिबेंचर। 8%. अगर 12% पर एनम इंटरेस्ट है तो डिबेंचर्स का नाम क्या होगा? 12% डिबेंचर। 12% डिबेंचर. वेरी गुड। ठीक है, हम शेयर्स के केस में लिखते थे ना शेयर कैपिटल, तो जहां जहां हम शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह अब लिखा जाएगा, सपोज 9% पर एनम वाले डिबेंचर्स हैं तो उसकी जगह लिखा जाएगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट शेयर कैपिटल की जगह। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट जहां जहां आता था शेयर्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में वहां पर आ जाएगा -% डिबेंचर्स अकाउंट, जितने भी परसेंट वाले होंगे वो नंबर के साथ। क्लियर? Yes, sir. Amount raised through debentures is a borrowing. So debenture holders are lenders of the company. Shareholders are owners of the company. Debenture holders are lenders of the company. Debentures, as I told you, may or may not be secured by way of charge on assets. मतलब हो सकता है assets as security रखे गए हो या ना रखे गए हो, वो mentioned होगा debentures पे। Interest on debentures is a charge against profit. आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था, याद है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। Yes, Yes, sir. क्या डिफरेंस होता है दोनों में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में? तो चार्ज में अगर प्रॉफिट नहीं भी होता तब भी हमें वो देना होता है, और एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट होता है तभी देना होता है। वेरी गुड। और दूसरा डिफरेंस, चार्ज जो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, पार्टनरशिप के केस में हम बात कर रहे हैं, और एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। यस। अब कंपनी पे आ जाते हैं, डिफरेंसेस वही हैं, सिर्फ फर्क ये है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है। तो चार्ज जितने होंगे वो आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और जो एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स में आती हैं, सरप्लस के नोट्स में। ठीक है? यस सर। Some important points about debentures. Debentures can be issued at discount also. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है शेयर्स और डिबेंचर्स में। Can shares be issued at discount? नो No, सर। sir. No, sir. Never. सर री इशू में होते हैं। Generally, shares cannot be issued at a discount, but they can be issued at a discount in two exceptional situations. One is reissue of shares. So the amount which was already received, face value which was already received, that much amount can be given as discount at the time of reissue. Second exception, do you remember? Section 54, issue of shares as sweat equity. So when shares are issued as sweat equity to the employees or employee directors, then they can be issued at discount. Otherwise, generally shares cannot be issued at discount. But debentures can be issued at discount without any problem. Okay? In any case. Clear? Yes, sir. Debenture holders do not have any voting rights generally. वो सिर्फ तभी इंटरफेयर कर सकते हैं जब डायरेक्टली उन्हीं का इंटरेस्ट कोई इफेक्ट हो रहा हो, अदरवाइज जनरली डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है? डिबेंचर होल्डर्स इन फैक्ट विल नॉट इवन बी invited in those meetings because they are not the owners of the company.
then interest on debentures is paid before paying dividend on shares, because पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे होती हैं, बाद में जो बचता है वो ओनर्स को मिलता है. तो प्रॉफिट में से पहले डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे होगा, बिकॉज दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. Dividend which is given to the shareholders is an appropriation of profit. So dividend will be given later on to the shareholders. First interest will be paid to debenture holders and on loans जिस चीज पे इंटरेस्ट है पहले इंटरेस्ट पे होगा. क्लियर? यस यस सर. ये ध्यान रखना है. कई बार स्टूडेंट शेयर्स के केस में इंटरेस्ट लिख देते हैं, डिबेंचर्स के केस में कई बार डिविडेंड लिख देते हैं, which is absolutely wrong. शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर्स पर डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है. सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी शट डाउन हो रही हो तो प्रिंसिपल अमाउंट डिबेंचर्स का पहले रीपे किया जाता है, बिफोर दैट ऑफ शेयर्स होना चाहिए. यहां पे इसको करेक्ट कर देता हूं मैं, बिफोर दैट ऑफ शेयर्स. ठीक है, डिबेंचर्स का अमाउंट पहले रीपे किया जाता है, शेयर्स का लास्ट में, क्योंकि शेयर्स ओनर्स के हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर. Yes, sir. यस सर. डिबेंचर्स के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी इज 75%. शेयर्स के केस में कितना था सेबी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ? 90%. Yes, debentures 90%. में it is 75%. Now types of debentures. With reference to security, we can have secured debentures, as I just told you, which are secured by a charge on assets of the company. मतलब जिनके बदले में कंपनी ने कोई अपने assets as security रखे हुए हैं, कि अगर कंपनी डिबेंचर्स के पैसे वापस नहीं कर पाई टाइम पे, तो डिबेंचर होल्डर्स उन एसेट्स को टेक ओवर कर सकते हैं या उन एसेट्स को बिकवाकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. तो ये कहलाएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स. एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स विच आर नॉट सिक्योर्ड, मींस जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं है. क्लियर? Okay, Yes, sir. यस सर. Charge may be of two types, fixed charge और a floating charge. फिक्स्ड चार्ज में क्या होता है, सपोज कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और कंपनी ने कहा कि हमारी ये जो बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग को एज सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं. तो अगर डिबेंचर होल्डर्स के प्रिंसिपल अमाउंट उनका हम टाइम पे रीपे नहीं कर पाए, डिबेंचर होल्डर्स कैन टेक ओवर दिस बिल्डिंग और दे कैन सेल ऑफ दिस बिल्डिंग टू रिकवर देयर अमाउंट. तो ये कहलाएगा फिक्स्ड चार्ज. क्या कहलाएगा? फिक्स्ड चार्ज. Fixed charge. हाँ, क्यों फिक्स्ड चार्ज? क्योंकि एक स्पेसिफिक एसेट कंपनी ने एज सिक्योरिटी दिया है. ठीक है, तो जब कोई एक या कुछ एसेट्स, स्पेसिफिक एसेट्स एज सिक्योरिटी दिए या ऑफर किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड चार्ज. बट व्हेन अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन ऑल द एसेट्स except those already charged by a fixed charge without any specification, it is called a floating charge. Suppose कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर्स इशू किए और कंपनी ने कहा हमारे सारे एसेट्स सिक्योरिटी हैं आपके पास. Means if the company is unable to repay the amount to debenture holders on the due date, the debenture holders can take over any assets or they can sell off any assets of the company to recover their amount. लेकिन हाँ, उतने अमाउंट तक ही जितना अमाउंट उनका ड्यू है. ये नहीं कि 1 करोड़ अमाउंट ड्यू है और वो 10 करोड़ के एसेट्स बिकवा दें. 1 करोड़ तक के ही कर सकते हैं. क्लियर? यस सर. अब इसमें ये Sir, kindly, हाँ बोलो. sir, एक बार fixed charge और floating charge का difference वापस बता दो. फिक्स्ड चार्ज में कंपनी ने कोई एक या कुछ स्पेसिफिक एसेट्स एज सिक्योरिटी ऑफर किए. कंपनी ने कहा बिल्डिंग एज सिक्योरिटी है, या कंपनी ने कहा बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर सिक्योरिटी है, बाकी के एसेट सिक्योरिटी में नहीं है. तो ये हो गया फिक्स्ड चार्ज. और अगर कंपनी कहती है सारे एसेट्स एज सिक्योरिटी हैं, तो ये हो गया फ्लोटिंग चार्ज. Okay, sir.
Thank ठीक you. है। अब यहाँ पर हमने जो लिखा है ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी चार्ज बाय फिक्स चार्ज, इसका क्या मतलब हुआ? सर अगर हमने किसी को ऑलरेडी कोई एसेट फिक्स चार्ज में अगर दे दे रखा दे Very रखा है good. तो वो नहीं Yes. चार्ज होएगा। यस, वेरी गुड। सपोज कंपनी ने एक लोन लिया बैंक से और उस लोन के बदले में कंपनी ने अपनी बिल्डिंग एज सिक्योरिटी, बिल्डिंग के पेपर्स बैंक के पास रखवा दिए, तो बिल्डिंग पे फिक्स चार्ज क्रिएट हो गया इन फेवर ऑफ बैंक। क्लियर? यस सर। अब यही कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करती है और वो कहती है हम सारे एसेट्स एज सिक्योरिटी रख रहे हैं, फ्लोटिंग चार्ज हो गया, लेकिन उन सारे एसेट्स में वो बिल्डिंग कवर नहीं होगी क्योंकि उसके पेपर्स तो ऑलरेडी बैंक के पास रखे हुए हैं, क्योंकि उस पे ऑलरेडी एक फिक्स चार्ज क्रिएट हुआ है। क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये मतलब है इस वर्डिंग का। विद रेफरेंस टू रिकॉर्ड, registered debentures are registered in company's records with name of the holders, whereas bearer debentures are not so registered. अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का नेम, एड्रेस वगैरह ये डिटेल्स अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है जिनको डिबेंचर्स अलॉट हुए, तो ये कहलाएंगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। उन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में कंपनी उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगी और रीपेमेंट के टाइम पे प्रिंसिपल अमाउंट भी उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, अनलेस एंड अनटिल इट रिसीव्स अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाय द डिबेंचर होल्डर्स। कोई डिबेंचर होल्डर कहे कि मैंने अपने डिबेंचर बेच दिए हैं किसी को, तो आप नेम चेंज कर लो, अपने रिकॉर्ड्स में डिटेल चेंज कर लो, नेम, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह। इन दैट केस कंपनी विल चेंज द नेम, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर, और अब वो नए डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी नए वाले को रीपे कर देगी। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और जनरली ऐसा ही होता है। बेयरर डिबेंचर्स में कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स अपने पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगी। क्या होगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट जब कंपनी इशू करेगी उसके साथ इंटरेस्ट के कूपन्स भी उन्हें देगी। ठीक है? अब जिसके पास भी वो डिबेंचर, जो भी वो डिबेंचर कूपन, सॉरी इंटरेस्ट कूपन कंपनी के पास सबमिट कर देगा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करके, उसके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट पे हो जाएगा। मैच्योरिटी पे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट प्रेजेंट कर देगा उसको कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देगी। ठीक है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयरर डिबेंचर्स। मींस एनीवन कैन ट्रांसफर द डिबेंचर्स टू एनीवन एंड इंटरेस्ट कूपन्स टू एनीवन विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की चीज है, तो इसलिए जनरली बेयरर डिबेंचर्स थियोरेटिकली तो होते हैं, प्रैक्टिकली जनरली नहीं होते। क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सपोज कंपनी डिबेंचर्स इशू करते हुए ये कहती है कि 10 इयर्स के लिए हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, बट at the end of 5 years, or let us say at the end of 10 years, the debenture holders will have an option to get their debentures converted into equity shares. तो ये कहलाएंगे convertible debentures, which can be converted into equity shares after a specified period. Is it clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Now, convertible debentures can either be fully convertible or partly convertible. अगर 100 रुपए के डिबेंचर पे कंपनी कहती है पूरे 100 रुपए ही आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये कहलाएगा फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। लेकिन अगर कंपनी कहती है यू कैन लेट अस से कन्वर्ट 50% ऑफ द अमाउंट और 60% ऑफ द अमाउंट, एनी परसेंटेज लेस देन 100% into equity shares, then they will be called what? पार्टली कन्वर्टेबल।
यस दे विल पार्टली कन्वर्टेबल। Partly convertible. ठीक है, अगर 60% कन्वर्ट हो सकता है तो 60% कन्वर्टेबल पोर्शन है, तो पार्टली कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, वो एज डिबेंचर ही रहेंगे जब तक उनका पीरियड है, और उस पीरियड के एंड में उनकी रिपेमेंट हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. यस सर। With reference to redemption, redeemable debentures which are to be repaid after a specified period, whereas irredeemable debentures are not to be repaid as long as the company continues. Again, practically irredeemable debentures are not found generally. More of a theoretical concept. Clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। With reference to priority, ठीक है, first debentures are to be repaid before other debentures, second debentures are repaid after first debentures. Suppose कंपनी ने 2-3 बार डिबेंचर्स इशू किए, तो कंपनी चाहे तो उन्हें अलग अलग प्रायोरिटी दे सकती है कि ये वाले, लेकिन ये कंपनी को इशू के टाइम पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट डिबेंचर्स है या सेकंड। मतलब अगर कंपनी फर्स्ट या सेकंड वर्ड लगा देती है उससे पहले, डिबेंचर से पहले इशू करते हुए, इसका मतलब हो जाता है कि इनकी पेमेंट पहले होगी और सेकंड वाला जिसके आगे लिखा हुआ है उसकी पेमेंट बाद में होगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। विद रेफरेंस टू कूपन रेट, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स मतलब जिन पर इंटरेस्ट एक स्पेसिफाइड रेट पर मेंशन्ड है, जैसे हमने कहा 9% पर एनम या 10% पर एनम। सपोज 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये कहलाएंगे स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक और तरह के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स या डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, विच डू नॉट कैरी इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट। अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे उसमें पैसा? इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन उसका तरीका डिफरेंट होगा। ठीक है, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड, है ना। पोस्टपेड में क्या होता है, बाद में पेमेंट होगी, प्रीपेड में पहले से ही हो जाती है। तो ये जो जीरो कूपन रेट बॉन्ड्स या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स होते हैं, दीज आर लाइक प्रीपेड डिबेंचर्स यू कैन से। इसमें क्या होता है, सपोज 100 रुपीज का डिबेंचर है, तो कंपनी कहती है कि हम 80 रुपीज में आपको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 5 साल बाद आपको 100 रुपीज हम पे कर देंगे। या लेट अस से 1 साल का एग्जांपल लेते हैं पहले, वो समझने में इजी रहेगा। सपोज कंपनी कहती है 90 रुपीज में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 1 साल बाद हम फेस वैल्यू 100 रुपीज रिपेमेंट कर देंगे। तो 10 रुपए का बेनिफिट कंपनी ने इशू के टाइम पे ही दे दिया, है ना। Yes, sir. वो 10 रुपए, यस सर। वो 10 रुपए एक्चुअली और कुछ नहीं, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट है, इम्प्लाइड इंटरेस्ट है। वो कंपनी ने रेट नहीं स्पेसिफाई किया, लेकिन पहले ही इशू के टाइम पे ही वो अमाउंट जो रिड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड इंटरेस्ट। तो ऐसे डिबेंचर्स या ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। क्लियर? यस Yes. सर। डिबेंचर ट्रस्ट डीड, अगर किसी बैंक से कंपनी लोन लेने जाए तो बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन होगा कंपनी का। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाए तो उस इंस्टीट्यूशन के साथ लोन एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उस लोन की। ठीक है, लेकिन डिबेंचर्स के केस में तो देयर में बी थाउजेंड्स और मे बी लैक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। अब सबके साथ कंपनी एग्रीमेंट कैसे करे? तो ऐसे में क्या होता है, ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे।
और उन ट्रस्टीज के साथ कंपनी एक एग्रीमेंट साइन करती है. दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड डिबेंचर ट्रस्ट डीड. व्हाट इज इट कॉल्ड? डिबेंचर ट्रस्ट Debenture Trust deed. Yes, debenture trust deed is executed between company and its appointed trustees to protect the interest of debenture holders through the powers granted by the trust deed. Clear? Yes, sir. Now showing debentures in the balance sheet. बैलेंस शीट में डिबेंचर्स कहां पे शो होने चाहिए? हमने बैलेंस शीट में कैटेगरीज डिस्कस की थी ना पिछले चैप्टर में, क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग होती हैं. डिबेंचर्स कौन सी हेडिंग सब हेडिंग में आने चाहिए? पहली मेन हेडिंग क्या होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड्स. तो क्या डिबेंचर उस हेडिंग में आते हैं? No, sir. नहीं. नो सर. उसके बाद सेकंड मेन हेडिंग क्या होती है? Current liabilities. नॉन करंट लायबिलिटीज पहले. ठीक है. तो डिबेंचर्स कहां पर आते हैं? लेट अस सी. When debentures are issued for a period of up to 12 months or operating cycle whichever is longer, they are shown under current liabilities, subheading short term borrowings. बताओ हेडिंग और सब हेडिंग. Current liabilities, subheading short-term borrowings. short-term borrowings. इसमें कब दिखाते हैं? जब डिबेंचर्स इशूड हुए हों For a year or an operating cycle, whichever is long. फॉर अप टू 1 ईयर, मतलब 1 ईयर या उससे लेस, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल तक, या ऑपरेटिंग साइकिल. अगर ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी का 2 साल का है तो 2 साल तक के लिए भी अगर इशू हुए हैं तो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ही आएंगे. क्लियर? Yes. Yes, sir. Second point, when debentures are to be redeemed after more than 12 months or operating cycle whichever is longer, they are shown under non-current liabilities, subheading long-term borrowings. Which heading, subheading? Non-current liabilities, subheading long-term Long-term borrowing. Yes. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा. मेन हेडिंग देखो है करंट लायबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं करंट बोरोइंग्स या इसे लिख देते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, विच विल बी रॉन्ग. इसी तरह से यहाँ पे मेन हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी, इसे बाय मिस्टेक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं लिख देना, नॉन करंट ही रहेगा. सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगी, उसे नॉन करंट बोरोइंग नहीं लिख देना. ठीक है. तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हेडिंग सब हेडिंग गलत हो जाती है. इफ अच्छा कब आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में? more than a year. More than a year. Yes, when the period is more than 1 year or more than operating cycle whichever is longer. If nothing is specified, suppose आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि पीरियड कितना है डिबेंचर्स का, तब हम एज्यूम करेंगे लॉन्ग पीरियड और शो करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. If nothing is specified, I repeat, we consider debentures to be long-term borrowings under non-current liabilities. Third point. Okay, sir. ये इंटरेस्टिंग है. सपोज डिबेंचर्स इशू हुए लेट अस से 2015 में, 1 अप्रैल 2015 में डिबेंचर्स इशू हुए फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. ठीक है. तो ये रिडेम्पशन कब होनी है इनकी? और लेट अस से 6 years. 1 अप्रैल 2015 को इशू हुए, 6 years के बाद रिडीम होने हैं. तो 31 मार्च 2016 को 1 year कंप्लीट हो गया. सेकेंड ईयर Yes, sir. 17 में, 2017. थर्ड 17 ईयर में, 18 में, 18. फोर्थ 19 में, फिफ्थ 20 में और सिक्स्थ ईयर 21, यानी 31 मार्च 2021. 2021 2021. को यस ये रिडीम होने हैं.
यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। Yes. Yes, sir. तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे ये, कौन सी हेडिंग सब हेडिंग में आएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज Sir, non-current liabilities और long-term borrowings. वेरी गुड। 31 मार्च 2016 को जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आएंगे ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर। 17 में जो बैलेंस शीट बनेगी तब भी, 18 में जो बनेगी तब भी, 19 में जो बनेगी तब भी, लेकिन 2020 में जो बैलेंस शीट बनेगी, अब देखो अब सिचुएशन क्या है, थे तो ये 6 इयर्स के लिए, लेकिन वो 6 ईयर का पीरियड अब कंप्लीट होने वाला है, मतलब विद इन 1 ईयर अब रिडीम होने वाले हैं। 31 मार्च 2020 को क्या पोजीशन है कि अब 1 साल के अंदर ये रिडीम होने वाले हैं। इज इट क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसकी एक थर्ड कैटेगरी आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। आई रिपीट, when debentures issued as long-term borrowings are due for redemption within 12 months or operating cycle whichever is longer, मतलब जो अभी तक लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो हो रहे थे लेकिन अब वो विद इन 1 ईयर या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रिडीम होने वाले हैं, तो अब हम उन्हें शिफ्ट कर देंगे कौन सी हेडिंग, सब हेडिंग में? मेन हेडिंग करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज, और उसके अंडर भी एक और सब हेडिंग आएगी करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब थी तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन अब मैच्योर होने वाली है, इसलिए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इज इट क्लियर? Yes, sir. कब आएंगे इस कैटेगरी में? जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगी और Long बस term. रिडेम्पशन आने वाली होगी विद इन अ ईयर। यस, और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लॉन्ग। कौन सी हेडिंग सब हेडिंग्स में दिखाएंगे इस केस में? मेन हेडिंग करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग ये जब मैच्योर होने वाली होगी, हाँ, मेन हेडिंग जब करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, होगा और रिडम्पशन विद इन एन ईयर। मेन हेडिंग करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। हो गया याद? Yes, sir. अब रिपीट करो, सब हेडिंग और मेन सब हेडिंग हेडिंग। The main heading current current liabilities, Liabilities. सब हेडिंग अदर करंट Heading. लायबिलिटीज, other current liabilities, सब हेडिंग सब हेडिंग रिडम्पशन, करंट मैच्योरिटीज ऑफ करंट लॉन्ग टर्म रिडम्पशन, डेट। लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। Now, journal entries for issue of debentures, they are similar to those of issue of shares. Main differences क्या हैं? मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल की जगह हम -% डिबेंचर्स लिख देंगे। अगर 8% डिबेंचर, 8% इंटरेस्ट है तो शेयर कैपिटल की जगह 8% डिबेंचर्स आ जाएगा। जिस एंट्री में जहां पर शेयर कैपिटल आता था उसकी जगह 8% डिबेंचर्स आ जाएगा। क्लियर? यस yes, sir. Yes, sir. बाकी की एंट्रीज में शेयर की जगह डिबेंचर वर्ड आ जाएगा, यानी शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल की जगह डिबेंचर फर्स्ट कॉल, एंड सो ऑन। क्लियर? यस Yes, सर। sir. If debentures are issued at a discount, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट एक क्रिएट होगा जो कि कंपनी के लिए लॉस है। क्या है कंपनी के लिए? लॉस, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रही है कंपनी, मतलब कंपनी को कम पैसे मिल रहे हैं, रिडीम उसने फेस वैल्यू पे करना है, तो कंपनी के लिए लॉस है। तो एक नया अकाउंट खुल जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और इसमें वो डेबिट कर देते हैं डिस्काउंट वाला अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। जैसे हम प्रीमियम कहते थे ना, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रीमियम को कब ट्रीट करना है? अलॉटमेंट के टाइम पे। सिमिलरली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में तो उसे कब ट्रीट करना है? अलॉटमेंट के टाइम। अलॉटमेंट के टाइम पे। क्लियर है यहां तक? यस Yes, सर। sir.
अगर डिबेंचर्स लंप सम में इशू हो रहे हैं तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। या चलो ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है? अभी यहीं पे रुकते हैं। एनी डाउट एनीवन? नो सर। नो सर। Okay, thank you. थैंक यू सर।